Good morning, students. So today we will read chapter number 7 in English grammar, The Seven Snowmen. The Seven Snowmen. This story is written by Pika Nanu. This is very interesting story. So who is the author of this story? Pika Nanu. But so before beginning our chapter, we will do hard words to correct pronunciation. So let's start. First one is shelter. 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 Shelter, a place that is safe from danger, rain and so on. एक वो जगह जो आपको डेंजर, रेन या किसी चीज से बचाती है, शेल्टर. ओके, सो नाउ RUMBLING. Next one is rumbling. 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 Rumbling, it means to make deep, heavy sound. To make deep, heavy sound. That is called rumbling. Now, next one is BLOCKED. It's blocked. Blocked, it means impossible for something or somebody to pass. Blocked, बंद हो जाना, किसी चीज का बंद हो जाना. वे इज ब्लॉक्ड और एनीथिंग इज ब्लॉक्ड. ब्लॉक्ड इट मीन्स कि कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन जो है अब वहां से पास नहीं कर सके. दैट इज कॉल्ड ब्लॉक. ब्लॉक इट मीन्स इम्पॉसिबल फॉर समथिंग और समबडी टू पास. नाउ RESCUED. Rescued. Rescued is means saved. Rescued, it means saved. Okay. Now UPTURNED. Upturn. Upturn. Upturn, it means upside down. Once again, RESCUED. It's rescued. Rescued, it means saved. UPTURNED. Upturn. Upturn, it means upside down. Now HEARTY. Hearty. Hearty, it means in large amounts. Especially hearty word is used in this chapter for food. Okay, in this chapter hearty word is used for food. So hearty, it means in large amounts. Okay, now WHIRRING. Worrying. WHIRRING. It's worrying. Worrying, it means make a low, continuous, regular sound. Make a low, continuous, regular sound. That is called whirring. Okay. Now CURLED. Curled. Curled, it means to move round in curve. To move round in curve. That is called curled. Okay. Once again, we will repeat these words. SHELTER. Shelter. RUMBLING. Rumbling. BLOCKED. It's blocked. Now RESCUED. Rescue. UPTURNED. Upturn. HEARTY. Hearty. WHIRRING. It's worrying. And now CURLED. Curled. Okay, so you will read once again these words for correct pronunciation. So now we will start our chapter. Let me read what is in the chapter. Okay, students. So now let me start reading The Seven Snowmen.
The Seven Snowmen, which is written by P.K. Nani. So who is the author of this story? P.K. Nani. I hope you all are familiar with the snowman. Okay, so this is a snowman. What is the meaning of snowman? The figure of a person made out of snow. एक person का figure जो snow का बना हुआ, that is called snowman. But in this story, 7 snowmen were there. Let me see what is in the story. Okay, now Jia, her father Hitesh and his brothers Achilles and Dinesh are on a track in the hill of Uttarakhand. What is the meaning of track? Track, it means, track. Track, it means a long journey on foot. That is called track. तो 11 years old जिया, उसके फादर हितेश और उनके ब्रदर्स अखिलेश और दिनेश, ये सभी उत्तराखंड की पहाड़ियों पर ट्रैक पर गए. The weather changes suddenly and their way gets blocked by snow. But suddenly जो वेदर होती है वो चेंज हो जाती है और उनका जो वे होता है वो ब्लॉक हो जाता है. They are unable to go back and take shelter in the house of a dhaba owner named शिवचरण. अब वो वापस जाने के लिए भी अनेबल थे. Why? Because the way was blocked by snow. क्योंकि जो वे था, जाने का रास्ता था, वो ब्लॉक हो चुका था. तभी वो क्या करते हैं, एक ढाबा का ओनर होता है जिसका नाम होता है शिवचरण, उनके यहाँ शेल्टर लेते हैं. शेल्टर, इट मीन्स अ प्लेस दैट इज सेफ फ्रॉम डेंजर, रेन एंड सो ऑन. शेल्टर का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो आपको डेंजर से, रेन से या फिर किसी भी चीज़ से आपको बचाए. दैट इज़ कॉल्ड शेल्टर. और ढाबा इट मीन्स रोड साइड रेस्टोरेंट. रोड साइड जो रेस्टोरेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ढाबा. तो उन्होंने ढाबा के जो ओनर थे, मालिक जो थे शिवचरण, उनके यहाँ उन्होंने शेल्टर लिया, आश्रय लिया. शिवचरण एंड हिज 2 children ओम एंड अलका आर ऑल्सो ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ द हेवी स्नोफॉल. शिवचरण और उसके 2 children अलका और ओम, वो दोनों भी हैवी स्नोफॉल के कारण ढाबे में ही ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते, स्टक हो जाते हैं. Everyone sleeps on mattress on the floor in the basement of शिवचरण's ढाबा. सभी कोई शिवचरण के ढाबे पर, जो बेसमेंट होती है, बेसमेंट जो अंडरग्राउंड रूम होता है, वहाँ के फ्लोर पे मैट्रेस बिछाकर सो जाते हैं. The next morning everyone was still in the basement when they heard a loud rumbling noise. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि सभी कोई बेसमेंट में ही रहते हैं और तभी वो लाउड रम्बलिंग नॉइज सुनते हैं. रम्बलिंग इट मीन्स टू मेक डीप हैवी साउंड. जोर जोर से चिल्लाने की, किसी चीज़ की आवाज़ सुन रहे थे. डीप साउंड, हैवी डीप साउंड. Achilles opened the trap door and the others followed him. Trap door, it means a small door in the floor leading to an underground room. Trap door का मतलब होता है एक छोटा सा डोर होता है जो फ्लोर पे बना हुआ होता है अंडरग्राउंड रूम में लीड करने के लिए, जाने के लिए. सो अखिलेश क्या करता है, वो ट्रैप डोर को ओपन करता है और बाकी लोग जो होते हैं इसको फॉलो करते हैं. But the front door wouldn't open. The snow had blocked it from outside. लेकिन जो फ्रंट डोर होता है वो नहीं खुलता. Why? Because the snow had blocked it from outside. क्योंकि स्नो के कारण वो जो डोर थी वो बाहर से ब्लॉक हो गई थी. शिवचरण पुल्ड ओपन अ विंडो एंड जम्प्ड आउट. और तभी शिवचरण क्या करता है, जो विंडो होती है, विंडो को वो ओपन करता है और उसके बाहर जंप कर जाता है. एंड देन जिया सॉ इट अ हेलीकॉप्टर. और तभी वहाँ से जिया क्या देखती है, एक हेलीकॉप्टर को देखती है, विच वॉज डिसअपियरिंग इन टू द हॉरिजोन. जो हॉरिजोन में डिसअपियर हो जाता है, इट मीन्स दिखाई नहीं देता. दे वेव्ड, shouted, screamed and ran till their feet got stuck in the snow, but it was too late.
जब वो हेलीकॉप्टर को देखते हैं, व्हेन दे वर सॉ हेलीकॉप्टर देन दे वेव्ड, हाथ को हिलाते इशारा करते हैं अपनी ओर, हाथ को हिलाकर वो एक जो होती है वो लिंक देते हैं कि वी आर हियर, वी गॉट स्टक इन द स्नो। ओके, सो वो वेव करते हैं, शाउट करते हैं, स्क्रीम्ड एंड ran till their feet got stuck in the snow, और जैसे ही वो दौड़ते हैं उनका जो फिट होता है वो स्नो में स्टक हो जाता है। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 days द ग्रुप फेल्ट होपलेस, 2 दिनों तक वो जो ग्रुप होता है वो होपलेस हो जाता है। होपलेस इट मीन्स फीलिंग दैट नथिंग गुड विल हैपन। अब उन लोगों को विश्वास हो गया था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। द ग्रुप फेल्ट होपलेस। ओके, नाउ टिल नाउ दे हैड बीन होपफुल दैट दे वुड बी रेस्क्यूड सून। और जब वो तब तक वो होपलेस रहते हैं जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन, इट मीन्स कि जो उनको बचाने वाली टीम है वो नहीं आ जाए, तब तक वो होपलेस रहेंगे। सो टिल नाउ दे हैड बीन होपफुल दे वुड बी रेस्क्यूड सून। उनको ऐसा विश्वास हो गया था कि नहीं, अब जो है बहुत जल्दी जो रेस्क्यू टीम है, जो उनको प्रोटेक्ट करने वाली टीम है वो आएगी, उनको बचाएगी। थोड़ी सी आशा बची थी। बट दे हैड मिस्ड देयर चांस, लेकिन उन्होंने चांस खो दिया था। द मैन डिसाइडेड टू टेक टर्न्स वेटिंग आउटसाइड द हाउस इफ द हेलीकॉप्टर केम लुकिंग फॉर देम अगेन। वो जो सारे मैन थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो तब तक घर के बाहर वेट करेंगे जब तक कोई अदर पर्सन उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए नहीं आ जाता। इफ़ द हेलीकॉप्टर केम लुकिंग फॉर देम अगेन, अगर उनको ऐसा दिखता है कि फिर से हेलीकॉप्टर जो है उधर आता है, ठीक है, अगर वो आते हुए देखते हैं फिर से, तो वो वहाँ पे वेट करेंगे ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उन्हें बचाया जा सके ना। टर्न योर पेज। दे हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, द सन रिफ्यूज टू कम आउट। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था उनके लिए, और सन भी जो था अब रिफ्यूज़ हो रहा था, रिफ्यूज़ टू कम आउट। सूरज जो थे वो भी नहीं दिख रहा था, सन भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सन ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि अब वो बाहर नहीं आएगा। इट कंटिन्यूड टू स्नो एंड दे हैड टू क्लियर इट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हाउस। स्नो जो थी वो कंटिन्यू हो रही थी, एंड दे हैड टू क्लियर इट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हाउस एवरी नाउ एंड देन। द मैन सफर्ड फ्रॉम कोल्ड्स एंड स्टिफ जॉइंट्स। Suffered from colds and stiff joints, it means felt pain in the knees and elbows and fingers, were not able to move the knees, elbows and fingers easily. It means कि उसके जो मैन थे वहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी नीज़, एल्बोज, फिंगर, वो सब कुछ जो थी वो काफ़ी पेन हो रहे थे, उन सभी को उसमें दर्द हो रहा था, और उनके नीज़, एल्बोज, फिंगर जो थे वो स्नो में स्टक हो जाने के कारण जो थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे। Okay, so now the children tried to help them out in small ways by making tea, chopping vegetables and tidying up the basement. Okay, जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, वो ट्राई कर रहे थे हेल्प करने की उनकी स्मॉल वे में, ताकि वो चाय बना सके, वेजिटेबल्स चॉप करना, टाइडिंग अप द बेसमेंट। ओके, बेसमेंट की साफ़ सफाई करना। तो इस तरह से छोटे छोटे वे में चिल्ड्रन जो थे उनकी हेल्प कर रहे थे। इट वॉज डे 4th डेज था। देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ एनी रेस्क्यू टीम। कोई ऐसा साइन नहीं था कि रेस्क्यू टीम आए और उनको बचाए। एंड द रोड वॉज स्टिल ब्लॉक्ड, और रोड भी जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। Okay, because there was heavy rainfall. Why don't you children go out and play? It hasn't snowed since last night and the sky looks clear this morning, said Jia's father. जिया के फादर ने कहा उन बच्चों को कि क्यों नहीं तुम जाकर बाहर खेलते। अब जो है लास्ट नाइट जो है, कल रात को स्काई जो थी वो क्लियर दिख रही थी। ओके, सो अब जो मॉर्निंग हो गई है, स्काई भी क्लियर है, तो क्यों नहीं तुम जाकर बाहर खेलते।
Out in the snow, Om and Alka showed Jia how to pack the snow as if making laddus. Then add more snow to make a big round ball. But it was too cold for them to throw snowballs at each other. Okay. So out in the snow, Om and Alka showed Jia how to pack the snow. जब वो घर के बाहर गए तो ओम एंड अलका ने जिया को बताया कि कैसे वो जो स्नो है उसको स्नो को पैक करते हैं. इट मीन्स कि टू होल्ड द स्नो स्ट्रांगली बिटवीन द हैंड सो दैट इट बिकम्स अ बॉल. बॉल की तरह बनाना, स्नो को बहुत सारी स्नो को कलेक्ट करके उसे बॉल का शेप देना, दैट इज़ कॉल्ड पैक द स्नो. तो अलका और ओम जो थे वो जिया को बता रहे थे कि कैसे जो है ये जो स्नो है इसका तुम बॉल बना सकते हो एज अ लड्डू की तरह. देन ऐड मोर स्नो टू मेक अ बिग. और फिर और पहले छोटा बनाओ, फिर उसमें और स्नो ऐड करो, उसको बड़ा बनाओ एंड राउंड बॉल, और वो राउंड सा बॉल बन जाएगा. बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर देम टू थ्रो स्नो बॉल्स एट ईच अदर. लेकिन अब जो थे काफ़ी जो थी वो ठंड थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स थ्रो नहीं कर सकते थे, फेक नहीं कर सकते थे. ओम एंड अलका थ्रू देम अप इन द एयर इंस्टीड एंड वॉच्ड इट डिलाइट एज दे क्रैश टू द ग्राउंड. तो ओम और अलका ने क्या किया, वो जो स्नो के बॉल्स बनाए थे उन्होंने उनको एयर में थ्रो किया, ठीक है, ऊपर की ओर थ्रो किया. एंड वॉच्ड इट डिलाइट एज दे क्रैश टू द ग्राउंड. और उन्होंने देखा कि वो किस तरह से ग्राउंड पे आके क्रैश हो जा रहे, और ये चीज़ें बहुत ही डिलाइटफुल थी. ओके. जिया कंटिन्यूड टू पैक द स्नो एंड मेड अ बिग स्नो बॉल. जिया जो थी वो कंटिन्यू जो थी वो स्नो का बॉल बनाए जा रही थी, और स्नो लेकर के और स्नो लेकर के. सो इनफ एंड व्हेन सी टेक इनफ एंड इनफ स्नो एंड मेक अ बिग स्नो बॉल. और उसने काफ़ी जो था वो स्नो लेकर के कलेक्ट किया और एक बड़ा सा स्नो बॉल बना लिया. सो नाउ we will continue in next class till you will read once again this chapter.